جی پیارے ساتھیوں، آپ سب کو مسیح یسوع کے زندہ جلالی بابرکت اور پرفضل نام میں سلام قبول ہو۔ تو ابھی ہم اردو چرچ فن لینڈ کے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ خوش آمدید۔ آپ سب پر ایک دفعہ پھر سے سلامتی ہو۔ تو ابھی ہم ایک چھوٹے سے پروگرام کا آغاز کرنے کو ہیں، تو ہم اس پروگرام کا آغاز دعا کے ساتھ کریں گے۔ آئے ہم سب آنکھیں بند کریں۔ خدا باپ، بیٹے، روح پاک کے نام میں آمین۔ قدوس مہربان زندہ خداون، لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے خداون یسوع پاک، ہم بڑی عاجزی کے ساتھ آپ کے حضور میں آتے، اپنے آپ کو خالی کرتے اور آپ کو آگے کرتے ہیں۔ عظیم خداون پاک خدا، خداون پاک خدا دیکھ، ابھی ہم اس پروگرام کا آغاز آپ کے نام سے کرتے ہیں، تو خداوند برکت ڈالنا۔ عظیم جلالی خداوند پاک خدا، آج ہم آپ کے کلام کے بارے میں جو بھی پڑھیں اور سنیں، خداوند یہ ہمارے ذہنوں میں نشین ہو جائے، تاکہ خداوند پاک خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ آپ کا کلام جو نجات ہے، جس میں نجات کی باتیں ہیں، خداوند پاک خدا ہم آپ کے کلام سے نجات پائیں، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ جی پیارے عزیزو، ہمارے ساتھ آج عمران جیم صاحب موجود ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بوجھ اٹھانا۔ تو آئیں عزیزو، اس بارے میں ہم عمران بھائی سے سنتے ہیں۔ جی عمران بھائی۔ جی کاشف بھائی، تھینک یو، بہت شکریہ۔ اور خداوند یسوع المسیح ناصری کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ سارا عزت، سارا جلال، حشمت اور بزرگی خداوند یسوع المسیح ناصری کے نام کی ہی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ خدا کے پاک کلام میں سے کچھ حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، گلنتیوں اور اس کا 6 باب پہلی سے 5 آیت۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: آئے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلیم مزاجی سے بحال کرو اور اپنا بھی خیال رکھ، کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور کچھ بھی نہ ہو تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ پس ہر شخص اپنے ہی کام کو آزما لے، اس صورت میں اسے اپنی ہی بابت فخر کرنے کا موقع ہوگا، نہ کہ دوسروں کی بابت، کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ جی کاشف بھائی اور میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں اور جو بھی ہمارے ویورز ہیں، میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بوجھ اٹھانا ہے۔ اور خدا کے پاک کلام میں آپ سب پڑھ سکتے ہیں، گلنتیوں نیا عہد نامہ اس کا 6 باب پہلی سے 5 آیت میں صاف لکھا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی قصوروار پکڑا جاتا ہے، کاشف بھائی کلام یہ فرما رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کوئی پکڑا بھی جاتا ہے قصور میں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، چلے معاشرہ تو ایک بڑا ایریا آ جاتا ہے، ہم ایک خاندان کی بات کرتے ہیں، چند ایک چھوٹی یونٹی، ایک یوتھ لگا لے، ایک ٹیم لگا لے، خاندان ہی لگا لیں۔ خاندان میں ایک بھائی پہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں ایک بھائی امیر ہے، اچھا ویل سیٹ ہے، دوسرا تھوڑا لو ہے، اس کے بچے نہیں پڑھ رہے۔ تو ابھی جو دور چل رہا ہے، 100 میں سے 98% لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی کے بچے اچھے سکول میں نہیں پڑھ رہے، بھائی کے گھر میں اچھی روٹی نہیں پک رہی، اس سے کہ بھی وہ پریشان ہو، وہ خوش ہو رہا ہے کہ اس کو پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہ خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں۔ کسی پہ قصور پکڑا بھی جا رہا ہے تو اس کے پاس جو حلیم مزاجی سے بحال کرو، اس کی مدد کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کوئی بندہ ہمارا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، اس کے پاس وہ غریب ہے، کچھ اس کے پاس سہارا نہیں ہے، وہ گلی میں آ رہا ہے تو ہم اس کو دیکھ کے گلی چینج کر لیتے ہیں
कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ टकराव हो हमारा और ये हमसे पैसे मांग ले, कुछ मदद ना मांग ले। सबसे पहले आप ये देखें खुदा का कलाम आपको क्या बता रहा है। फिर हम खुदा से गिला करते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। मैं रोज़ सुबह उठ के दुआ करती हूँ, मैं रोज़ दुआ करता हूँ, मैं रोज़ा रखता हूँ, रोज़े रखती हूँ, मैंने इतने दिन का रोज़ा रखा है, मैंने खुदा के ज़ूर में शुक्रगुजारी दी है, मैं अपना 10वां हिस्सा दे रहा हूँ। आप ये चीज़ें दे रहे हैं, खुदा के ऊपर आप आसान नहीं कर रहे, खुदा के दिए में से आप दे रहे हैं उसको। लेकिन खुदा का जो वादा है कि बोझ उठाओ एक दूसरे का, आप उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? आप उसकी मदद नहीं कर रहे, आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे, आप अपने भाई का बोझ नहीं उठा रहे, आप अपने हमसाए का बोझ नहीं उठा रहे, आप अपने कलीसिया में से किसी मेंबर को परेशान है, आप उसको पूछ नहीं रहे भाई क्या परेशानी है, क्या मुश्किल है। इंसान एक ऐसे दिल का और एक ऐसा जिस्मानी मशीनरी खुदा ने तैयार की है कि कोई परेशान है, कोई दूसरा इंसान उसको अच्छे तरीके से पूछ ही लेता है, काश भाई आप ठीक हैं, क्या बात है, परेशान है। तो इंसान के जो जहन और जिस्म है और जो दिल है वो इतनी बात से एक इत्मीनान में आ जाता है कि यार मैं खुदा के घर में आया हूँ, मेरे भाई ने मेरे से अच्छे तरीके से मिला है, अच्छे तरीके से मुझसे कुछ मेरे हालात पूछे हैं, उसी वजह से वो थोड़ा इजी फील करता है, बेशक अच्छा होता है। और उसको ये खुदा में उसका ईमान बढ़ता है कि यार मेरी कलीसिया में खुदा के लोग मेरे साथ खड़े हैं, मुझे कोई परेशानी आएगी तो खुदा के लोग मेरे साथ खड़े हैं। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जो जब किसी पे मुश्किल बनती है तो कोई लोगों के पास जाते हैं। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये होता है, किसी पे कोई परेशानी आती है तो वो आप मत घबराएं, क्योंकि खुदा भी कहता है कि मत डरो, मैं तुमसे कहता हूँ खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो, और फिर कहता हूँ खुश रहो। मैं क्या आपको छोटी सी मिसाल, अक्सर मेरे दोस्त अहबाब भी मुझसे बात करते हैं, तो ये मैं इन सब तजर्बों में से मैं गुजरा हूँ, बहुत परेशानियां मैंने देखी हैं, तंग हालात मैंने देखे हैं, और मैंने उसमें क्या सीखा है, अगर आप तंग दस्ती परेशानी देखकर आप परेशान होंगे तो आप मज़ीद परेशानी में बढ़ेंगे, आपकी परेशानी मज़ीद बढ़ेगी। मैं इसलिए इसको थोड़ी कलाम से बाहर बात करने लेके जा रहा हूँ। इस बार मेरी बात आप गौर से सुनिएगा, ये चीज़ कि अगर आप परेशानी में हैं, आप परेशान हो के चुप बैठ के या रो के वो काम नहीं कर सकते, फिर आपका वो परेशान होना रोना बेफायदा है। उससे बेहतर ये है कि आप अपने खुदा के आगे अकेले में जाएं, सजदे में जाएं, उसके आगे रोएं जिसने देना है, उसके आगे गिड़गिड़ाएं जिसने देना है, उसी से मांगे जिसने देना है, और जो वो कह रहा है उसको करे। वो कह रहा है कि एक दूसरे का बोझ उठाओ, हलीमी से करो, हलीम मजाजी से उसको माफ करो। दूसरे नंबर वो कह रहा है, आज बहुत सारे लोग हैं, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, मेरे बहुत सारे जानने वाले दोस्त हैं, कुछ भी नहीं है, और वो अपने आप को दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, और जब वक्त आता है कुछ करने का तो कुछ भी नहीं होते, वो अपने आप को धोखा देते हैं। और पाक कलाम भी इस चीज़ में लिखा हुआ है, बता रहा है कि पास हर शख्स अपने ही काम को आजमा ले, इस सूरत में उसे अपनी ही बाबत फख्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरे की बाबत। मेहनत में इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं कि आप मेहनत करें। हम जो कुछ भी नहीं होते और बहुत कुछ बनने की कोशिश करते हैं, मगरूरी दिखाते हैं, ऐसे ही मैं अंदर में भरी होती है, ये सब चीज़ों में से हमें निकलने की ज़रूरत है। और फ़कत खुदावंद का ही नाम बड़ा है, और उसी का ही नाम इज़्ज़त और जलाल के लायक है, और उसी नाम के आगे हमको झुकने की ज़रूरत है और एक दूसरे की बोझ उठाने की ज़रूरत है। हम देखते हैं, हम कहते हैं कि खुदा मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा, खुदा मेरी दुआ नहीं सुन रहा। एक दफ़ा आप जो खुदा कह रहा है वो करके आप देखे तो सही। खुदा कहता है ना कि तू मेरे घर में
जो खुदा के हिस्सा वो लेके पूरे तौर पे ईमानदारी से लेके और फिर मुझे आजमा के देख। सबसे पहले हमें अपने इर्द गिर्द देखना है, अपने घर में देखना है, अपने ख़ानदान में देखना है, फिर अपने मोहल्ले में, अपनी कलीसिया में देखें। जो बहन जो भाई परेशान है उसका बोझ उठाएं, जो आप कर सकते हैं अपनी तरफ से करें, खुदा के कलाम को पूरा करें। कोई तंग दस्ती में है उसको हलीम और फरोतन जाने को, कसूरवार है उसको माफ़ करें, उसको गले लगाएं और खुदावंद की बरकतें आपके ऊपर, आपके घराने के ऊपर बहुत जल्द खुदा नाज़िल करेगा। खुदा नहायत मेहरबान और कदूस है जो हम सब को दुखों, परेशानियों, मुसीबतों से छुड़ाता है। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। जी इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खुदा के ज़िंदा कलाम में से हमारे लिए आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को हमारे साथ शेयर किया। जी, तो इस बात के लिए हम आपका नहायत दिल से शुक्र अदा करते हैं। इमरान भाई, इसके साथ साथ यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि तुम अपना बोझ मुझ पर लाद दो। यीशु, अगर हम अपना बोझ यीशु मसीह पर ला देते हैं, हमारी फिक्रें, हमारी सोचें, हमारे काम अगर हम यीशु मसीह के सुपुर्द कर देते हैं, यीशु मसीह पर इन चीजों का बोझ डाल देते हैं, तो हम यकीनन यीशु मसीह में पेवस्त रहेंगे, क्योंकि हमारी सारी फिक्रें, हमारा सारा बोझ यीशु मसीह पर है और हमने जो इत्मीनान है वो यीशु मसीह का इत्मीनान है। हालेलुया। ठीक है, और ये हमारे लिए एक बहुत ही खुशखबरी और एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि आगे आपने बताया कि हमारा जो भाई है वो बोझ के नीचे है ना, वो गुर्बत में है, वो परेशानी में है, तो हम खुश होते हैं। आपने कहा कि बजाय हमें चाहिए कि हम उनका बोझ उठाएं, हम उनका सहारा बने। लेकिन आज के दौर में हम क्या करते हैं कि हम बजाय अपने भाई का, अपने पड़ोसी का बोझ उठाएं, बल्कि हम ये करते हैं कि हम बोझ उठाने के बजाय उस पर बोझ लादते हैं और डाल देते हैं, ताकि वो अगर 50% उसके ऊपर बोझ है ना, तो हमारी कोशिश होती है कि 100 का 100% उस पे जो है ना वो बोझ आ जाए, ताकि वो जिंदगी में कभी उठ ना सके। तो मेरे प्यारे अजीजों, यीशु मसीह का जो पैगाम है, सारी जिंदगी का जो पैगाम है, मोहब्बत पे ही इन्हिसार है। अमन, सलामती, यीशु मसीह जो इनका गवारा है, अमन सलामती, यीशु मसीह जो कि अमन और सलामती के गवारा हैं। तो यीशु मसीह की पूरी जिंदगी का जो टाइटल है, पूरी जिंदगी का जो एक एम है, मकसद है, वो निजात है, और उसके साथ साथ यीशु मसीह ने हमें अमन का पैगाम दिया है। तो मेरे प्यारे अजीजों, आज हमें इस बात की जरूरत है कि हम बोझ उठाएं, अपने भाइयों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों का, क्योंकि जब हम इनके साथ अच्छे तरीके से चलेंगे तो यीशु मसीह ऑटोमेटिकली हमारे साथ चलेंगे। तो आए हम अजीजों, हम दुआ के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा इमरान भाई से कि वो इख्तिताम के लिए दुआ करें। हालेलुया। आए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और खुदावंद को पुकारें, जो हमारी पुकार को, हमारी आवाज़ को सुनता है और हमें जवाब देता है। खुदावंद, तू जो था, है और आने वाला है, हम तेरा ही शुक्र करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू ही शुक्र गुजारी के लायक है खुदावंद। तूने जो भी टाइम हमको बख्शा खुदावंद, जो भी वक़्त दिया खुदावंद, इसके लिए तेरे शुक्र गुजार है खुदावंद। और जो भी ऑनलाइन हमें देखते हैं खुदावंद, जो बहनें, जो भाई देखते हैं, जो ख़ानदान देखते हैं खुदावंद, इस कलाम के वसीला से लश्करों के प्यारे खुदावंद, वो इस कलाम का बीज उनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए खुदावंद। और हम सब है खुदावंद तुझी में बढ़ें और तुझी से इज़्ज़त और जलाल है खुदावंद रिसीव कर सके खुदावंद। पा खुदा, तू जो हशमत और बुजुर्गी का लायक है खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। अपने कभी हाथ को बढ़ा के सबको बड़ी बरकत देना खुदावंद, और अपने जलाल में ममूर कर है खुदावंद। ये सब दुआ तेरे मीठे जलाली नाम से मांग कर पाते हैं, आमीन। आमीन।